Hi guys, how are you? I hope you are doing well. So, as we discussed earlier, wherever I mark M, it is for the mains related topics, and wherever I mark P, इसका मतलब है prelims related topic है. So, आज let us start our discussion. So, इधर है आज और टॉपिक है security. So, today our topic is security. इसमें first content है cybercrime in India. It is very important for your mains and prelims because this cybercrime issue is always in news because of our digital India and because of our easy access to internet and mobile phones. So cybercrime again and again come in news. So please focus. So here, what is the context for the cybercrime issue to come out? One is parliamentary panel of home affairs, मतलब the Ministry of Home Affairs. There is a parliamentary panel regarding to this ministry. So it given a report on cyber crimes, like how cyber crimes का जो evolution है, how they are becoming complex day by day. So they have given a report. So based on this issue has come up. So basically cyber crime होते क्या है? इन सिंपल टर्म्स साइबर क्राइम का मतलब है कुछ अनलॉफुल एक्ट करना थ्रू यूसेज ऑफ कंप्यूटर एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स, सो दैट दिस कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कैन बी आपका एक टूल टाइप आप यूज़ कर सकते, मतलब दे आर यूज्ड एज ए टूल or they are used as a target, means your target is to hack that computer or you to hack that electronic device. So it is called as cybercrime. So it's a very simple definition. You can use it for your mains introduction point of view. So इधर मैं राइट किया हूँ इधर some prelims mains related things, right? The types of cyber crimes, because there is recently a question in UPSC PYQ question. They have asked that what are the types of explain different types of cyber crimes. That's a very direct question. So at that point of time आपको पता होना है कि what are the different types of cyber crimes. So अब इधर देखें तो you can divide them into two. One is traditional cyber crimes and one is emerging cyber crimes, right? So जो आपका ट्रेडिशनल साइबर क्राइम्स है उसमें आपका आएगा मालवेयर मतलब मैलीवेलेंट सॉफ्टवेयर. मैलीवेलेंट का मतलब है कुछ नेगेटिव और बैड. सो ये क्या करेगा, ये सॉफ्टवेयर आपका फ़ोन और आपका कंप्यूटर को हैक करेगा, राइट? इन्फॉर्मेशन, इट विल पास योर इन्फॉर्मेशन टू द हैकर. सो उसको बोलते हैं हम मालवेयर. एंड इसमें अनदर वर्जन है रैंसमवेयर. रैंसमवेयर का मतलब है दैट व्हाट विल हैपन व्हेन दैट सॉफ्टवेयर कम इनटू योर लैपटॉप और इन योर फ़ोन, इट विल डिक्रिप्ट, मतलब आपका फ़ोन को इट लॉक कर देता है पूरा. सो इन ऑर्डर टू, बिकॉज आपका इंपॉर्टेंट फाइल होगा आपका लैपटॉप में और सिस्टम में, सो यू वांट टू ओपन इट एंड यू वांट टू ओपन दैट लॉक. सो द हैकर विल डिमांड यू सम रैंसम मतलब एक्सटॉर्शन मनी. ही विल आस्क यू फॉर सम पेमेंट इन क्रिप्टो करेंसी टू अनलॉक योर फोन. इट इज़ कॉल्ड एज रैंसमवेयर, राइट? एंड अनदर थिंग है फिशिंग. It is called phishing, right? So you have to know, as UPSC aspirant, you have to know what is the meaning of phishing, because it will always, it many times come in the news. Phishing, right? Phishing का मतलब है like the hacker use emails or another messages or something which exactly look like authenticated and authorized source, but it is not. It is fake, like fake websites, fake emails asking you to give your credit card details or tell your login passwords of bank something. So it is called phishing, right? Why the name is phishing? It is because it looks like phishing. In phishing, what will happen? Normally we will put a bait to the fish. Like here also the hacker put a bait to the people, to the victims, like fake website, or telling that आपका एक प्राइज मिल गया, आपको लॉटरी लग गया, सो अब आपका डिटेल्स दे दो, आपका बैंक डिटेल्स दे दो, आप इसमें लॉग इन करो, समथिंग लाइक दैट. सो ही विल गिव ए बेट. देन विक्टिम्स वंस से टेक दैट बेट, मतलब वंस दे गिव देयर डिटेल्स एंड एनीथिंग टू द हैकर, देन हैकर विल यूज दैट मनी टू एक्सप्लॉइट द विक्टिम्स, राइट? दैट्स व्हाई इट्स नेम इज फिशिंग. देन अनदर वन है इसका वेरिएशन विशिंग. विशिंग मतलब सी हियर द वर्ड वी का मतलब इधर वॉइस फिशिंग है. मतलब दे यूज द वॉइस using the current technologies. They mimic your voice and call to your parents, telling that okay, they like in your voice they will call to your parents and tell that okay, you are in problem, you need some money. Similarly smishing, it is nothing but SMS. You send some SMS looking like messages came from TRAI or other telecom regulatory authority of India, etc, right? These are your traditional things. मतलब till now जो हुआ ये है. But there are emerging threats also. What are the threats? This is very important for your mains prelims also, because here आप देख सकते हो रैंसमवेयर के ऊपर क्वेश्चन आ गया प्रीलिम्स में, PYQ में. इसमें पूछा कि पेत्या
WannaCry are recently seen in news. They are related to what? Actually, they are a type of ransomware attacks which took place in that year. So that's why question came. So this is very important. And अभी new threats are emerging. इसमें there are as technology is emerging, new threats also emerging. इसमें एक है crypto jacking. एज ए यूपीएससी एस्पिरेंट आपको पता होना है क्रिप्टो जैकिंग क्या होता है. क्वेश्चन आ सकता है कि क्रिप्टो जैकिंग का मतलब क्या है, सीधा क्वेश्चन, राइट. क्रिप्टो जैकिंग का मतलब है सीधा वर्ड क्रिप्टो, एक तो वर्ड है क्रिप्टो, एक तो वर्ड है समथिंग जैकिंग. सो व्हाट विल हैपन, हैकर आपका फ़ोन और कंप्यूटर को हैक करेगा, राइट. फर्स्ट ही विल हैक योर फ़ोन. उसके बाद आपका फ़ोन और लैपटॉप को यूज़ करके वो क्रिप्टो माइनिंग का कॉन्सेप्ट है ना, वेयर द कंप्यूटर्स आर यूज्ड टू गेट द क्रिप्टो करेंसीज. सो आपका कंप्यूटर यूज़ करके विदाउट योर नोटिस और विदाउट योर कंसेंट दैट हैकर विल माइंड द क्रिप्टो करेंसीज. उसका नेम है क्रिप्टो जैकिंग, राइट. एक तो ये हो गया. एंड अनदर है कैश, CASS, क्रैम एज ए सर्विस. ये भी आपका प्रीलिम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि देर इज़ ए PYQ क्वेश्चन, राइट. देर इज़ ए PYQ क्वेश्चन इन द पास्ट विच इज़ अबाउट SaaS. इसका मतलब है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस. इसके ऊपर क्वेश्चन आ गया ऑलरेडी यूपीएससी प्रीलिम्स में, राइट. सो नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन कैन कम CAAS, क्रैम एज ए सर्विस का मतलब क्या होता है, राइट. एज ए यूपीएससी एस्पिरेंट वी हैव टू नो व्हाट इज SaaS. इसका मतलब है क्रैम एज ए सर्विस. लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ बिफोर ऐसे होते थे, हैकर बहुत स्किलफुल पर्सन होते हैं, मतलब कंप्यूटर हैकर समथिंग, उसका बहुत स्किल्स है, सो हैक कर सकते हैं, राइट. बट अभी क्या है, देर आर ऑलरेडी डेवलप सम टूल किट्स सम फ्रॉम फेक वेबसाइट्स, एवरीथिंग इज ऑलरेडी रेडी. So what one will do, that even a person with less skills or no skill, he just pay money to the those hackers or those people who are doing this business which is an illegal business. So they just pay to the money like a ransomware करने के लिए कुछ like what you tell, they pay money and they ask कि ये इसका कंप्यूटर के ऊपर ransomware का अटैक करो, something like that. So they this particular illegal body will take that money and they do that attack on that particular system or on that particular company, right. So इसको यू कैन सिंपली रिमेंबर एक ब्लैक मार्केट डार्क वेब का ब्लैक मार्केट है, वेर यू विल गेट दिस काइंड ऑफ टेक्निकल रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर टू हैक अदर पीपल्स फोन और टू डू सम साइबर क्राइम्स, राइट. इसका मतलब है साइबर क्राइम एज ए सर्विस. इसमें आपका अदर वेरिएशंस होगा, रैंसमवेयर एज ए सर्विस, मालवेयर एज ए सर्विस. सो ये इसका सब पार्ट्स हैं, राइट. ये हो गया आपका हमारा प्रीलिम्स का रिलेटेड. सो अभी ये देखो, सो जो भी देर विल बी सम रीजन्स, राइट. अभी रिसेंटली देर इज़ अ राइज ऑफ साइबर क्राइम्स. ऐसे ही क्यों, बिफोर भी साइबर क्राइम्स होते थे, मतलब बिफोर भी देर इज साइबर क्राइम्स, बट रिसेंटली दे आर ऑन राइज. वाई? सो ये आपका मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस डायमेंशंस आर इम्पॉर्टेंट, राइट. एक तो है रैपिड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन. इसका मतलब है अभी रिसेंटली गवर्नमेंट इज कमिंग ऑफ सो मेनी डिजिटल इनिशिएटिव्स लाइक आधार, UPI, डिजीलॉकर एक्सेट्रा एक्सेट्रा. उसके साथ देर इज़ हाई स्पीड इंटरनेट इज़ अवेलेबल. सो जितना अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेगा इसकी वजह से सिमिलरली साइबर वल्नरेबिलिटी आल्सो इंक्रीजिंग फॉर साइबर क्राइम्स, राइट. एक तो ये है. अनदर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डायमेंशन है, दैट इज़ योर बिकॉज साइबर क्राइम्स इज सच दैट कि आप एक कंट्रीज में हैकर एक कंट्री में बैठ करके दूसरे कंट्री का थिंग्स को हैक कर सकता है, साइबर क्राइम कर सकता है, राइट. एक मान लो एक कंट्री X है, सो इधर हैकर है, ही विल हैक द पीपल और पीपल्स फ़ोन इन Y कंट्री, राइट. इसको बोलते हैं ट्रांसनेशनल नेचर ऑफ द साइबर क्राइम. जस्ट हैकर को जस्ट कंप्यूटर एंड दिस थिंग्स आर रिक्वायर्ड, सो ही कैन हैक पीपल्स डिवाइस इन अदर कंट्रीज, राइट. इसमें आप ये टर्म रिमेंबर करने को ट्राई करो, स्कैम फैक्ट्रीज. रिसेंटली इन न्यूज़, व्हाट इज़ मीन बाय स्कैम फैक्ट्रीज? इसका मतलब है लाइक इंडिया से या कुछ कंट्री से पीपल को ट्रैफिक कर रहा है. ट्रैफिक मतलब उसको किडनैपिंग और अबडक्टिंग फ्रॉम देयर और शोइंग सम काइंड ऑफ व्हाट यू टेल they will show that कि आपको jobs, we will give you jobs or something, they will take them to another country and उधर उसको टार्चर करके स्लेवरी करवा के उसके साथ with the help of them they are using these scams like calls like जब भी scams है people are speaking in pure Hindi or pure Telugu or these kind of languages because they are Indians only. They are trafficked to another countries like Southeast Asian, particularly Southeast Asian countries. From there they are operating these kind of scam factories, those criminals, right. एक तो ये है.
अनदर है ऑर्गेनाइज्ड नेचर ऑफ द साइबर क्राइम। इसका मतलब है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, मतलब डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में देर आर सम बॉडीज or there are some illegal bodies and groups which are organizing these cyber crimes, so because of it also it is increasing. अभी हम रीड किया क्राइम एज ए सर्विस, सो इधर अब देखो साइबर क्राइम एज ए सर्विस, दिस काइंड ऑफ टेक्निकल थिंग्स आर कमिंग अप, राइट। ये तो एक है। इसमें क्या होगा, सेम जो हम बात किया, रेडीमेड टूल्स आर अवेलेबल टू डू हैकिंग, राइट। इसलिए ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की वजह से दिस थिंग्स आर इंक्रीजिंग, राइट। अनदर थिंग है जुरिस्डिक्शनल चैलेंज। इसका मतलब है इंडिया में एक सेट ऑफ रूल्स होगा, दूसरा कंट्री में एक सेट ऑफ रूल्स होगा, सो कोऑर्डिनेटिंग बिटवीन दिस टू कंट्रीज इज डिफिकल्ट बिकॉज द क्रिमिनल इज सिटिंग इन अनदर कंट्री, सो फॉर इंडियन इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज to get hold of that particular person is difficult because of this jurisdictional challenges, right। ये एक प्रॉब्लम है। एंड अनदर रीज़न है evolving of criminal methods। इसका मतलब है जो बिफोर क्रिमिनल मेथड्स होते थे वो अभी चेंज हो गया, तो मतलब बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी वो चेंज हो गया। हाउ, हम ये देखेंगे, ये आपका प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज़ VPN, व्हाट इज़ बुलेट प्रूफ होस्टिंग एंड व्हाट इज़ IPFS, these are important for your prelims। let us see। VPN का मतलब इतना है, VPN मीन्स वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स। इसका मतलब है VPN वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स, राइट। इसमें क्या होगा, इट्स अ काइंड ऑफ सर्वर। आप एनीवन इसको कनेक्ट करे तो इसका आपका IP एड्रेस विल बी देयर ना। नॉर्मली गवर्नमेंट्स आर एनीथिंग कैन मॉनिटर ए पर्सन थ्रू देयर IP एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल। IP मीन्स इंटरनेट प्रोटोकॉल, इट्स जस्ट लाइक ए फोन नंबर टाइप फॉर ए डिवाइस। So normally governments use this IP address to track the people, but with the help of VPN what will happen, this IP will be masked, मतलब it is not easily visible to the government, right। इसलिए VPNs को यूज़ करके भी the cyber criminals are doing the crimes। एक तो ये है VPN, एंड ये है what is bullet proof hosting। बुलेट प्रूफ का मतलब है इट इज़ इम्यून टू बुलेट्स, राइट। इसका नॉर्मल मतलब है बुलेट प्रूफ का मतलब इट इज़ प्रूफ ऑफ बुलेट्स, मतलब बुलेट हिट करे तो भी कुछ नहीं होगा। इधर होस्टिंग है, होस्टिंग मतलब नॉर्मली इंटरनेट होस्टिंग है। इसका मतलब कुछ वेबसाइट ऑन ए सर्वर और सम सर्विस प्रोवाइडर्स दे होस्ट द वेबसाइट्स एंड दीज थिंग्स। बुलेट प्रूफ होस्टिंग का मतलब है व्हाट द सर्विस प्रोवाइडर्स विल डू, दे विल इग्नोर द टेक डाउन रिक्वेस्ट। मतलब गवर्नमेंट फाइंड करते कि इफ़ कुछ वेबसाइट में इलीगल थिंग्स आर हैपनिंग तो वो एक नोटिस भेजेगा टू द सर्विस प्रोवाइडर की ये इलीगल वेबसाइट है, उसको टेक डाउन करो, आपका जो प्लेटफॉर्म से रिमूव करो। बट इधर बुलेट प्रूफ होस्टिंग का मतलब है वो जो सर्विस प्रोवाइडर है वो गवर्नमेंट का को फॉलो नहीं करेगा, राइट। इसमें दे विल होस्ट मोस्टली इलीगल थिंग्स, इलीगल वेबसाइट्स, ब्लैक डार्क वेब, दिस काइंड ऑफ थिंग्स दे विल होस्ट। तो इसका मतलब हो गया बुलेट प्रूफ होस्टिंग, डन। देन ये हो गया इंटरप्लानिटरी फाइल सिस्टम। इंटरप्लानिटरी फाइल सिस्टम, इट इज़ फॉर व्हाट, डिसेंट्रलाइज्ड स्टोरेज। नॉर्मली ट्रेडिशनली ये होते थे कि अभी भी हो रहा है कि एक सेंट्रलाइज्ड सर्वर होगा, उसके पास इन्फॉर्मेशन विल बी स्टोर्ड एक ही प्लेस में। सो जब भी गवर्नमेंट उसको टेक डाउन नोटिस भेजेगा तो उधर एक ही प्लेस में होगा ये इन्फॉर्मेशन समथिंग बिफोर, सो वो टेक डाउन करेगा सेंट्रल सर्वर से। बट अभी डिसेंट्रलाइज्ड स्टोरेज है, मतलब सो मेनी प्लेसेस में द थिंग्स विल बी स्टोर्ड। मतलब एक सर्वर विल बी इन अमेरिका, एक सर्वर विल बी इन UK, एक सर्वर विल बी इन इंडिया। ऐसे बहुत डिसेंट्रलाइज्ड स्टोरेज है, मतलब पर्सन टू पर्सन। लाइक अभी एक इंडिविजुअल भी इसमें ज्वाइन कर सकता है, सो उसका लैपटॉप, उसका सिस्टम में भी कुछ डाटा ही कैन स्टोर, ही विल शेयर दैट डाटा विथ अनदर पर्सन। सो डिसेंट्रलाइज्ड स्टोरेज, इसको कर्टेल करना एंड इसको कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, राइट। सो बिकॉज ऑफ दीज रीजन्स आल्सो इट इज़ बिकमिंग डिफिकल्ट टू कंट्रोल द साइबर क्राइम्स। एक तो ये हो गया, एंड और एक है गैप्स इन लॉस। मतलब ऑलवेज रिमेंबर, एक तो पॉइंट लीगल एंगल से आना ही आना है आपका मेंस एग्जाम में व्हेन यू राइट। सो एक तो है दैट IT एक्ट है एंड कुछ अनदर एक्ट्स आर देयर। इसमें क्या है, एक्ट्स हम चेंज करते रहते हैं बट वो इसको टाइम लगता है, लाइक 1 2 3 ईयर्स में एक बार वी अमेंड द एक्ट। बट बिकॉज ऑफ द रैपिड एवॉल्विंग टेक्नोलॉजी एवरी दूसरे दिन उसका मॉडस ऑपरेंडी, मतलब द वे द क्राइम्स आर हैपनिंग वो चेंज होते रहते हैं। सो इसकी वजह से देर इज़ ऑलवेज गैप्स इन आवर लॉस। इसमें यह है कि लीनियंट पेनाल्टीज, मतलब वेरी लेस अमाउंट ऑफ पेनाल्टीज एंड पुअर ग्रीवेंस रिड्रेसल। ग्रीवेंस रिड्रेसल का मतलब ये है दैट आपको कुछ दिक्कत हो गया, उसको रिड्रेसल करना है। रिड्रेसल मतलब उसको सॉल्व करना है, बट पुअर ग्रीवेंस रिड्रेसल मतलब आपको जो दिक्कत आ रहा है उसको सॉल्व करने में कुछ तो फेलियर हो रहा है इधर, इसका मतलब है पुअर ग्रीवेंस रिड्रेसल। और एक है ट्रेंड साइबर एक्सपर्ट्स का कमी है इंडिया में, मतलब देर इज़ लेस नंबर ऑफ ट्रेंड साइबर एक्सपर्ट्स, ये प्रॉब्लम्स है। बट हम एस्टरडे डिस्कस किया फॉर मेंस आंसर यू रिक्वायर
not only the reasons why it is happening, but you also should know what is the impact. इसका इम्पैक्ट क्या है? साइबर क्राइम्स आर राइजिंग, ओके, इसके वजह से इम्पैक्ट क्या होगा? व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस? एक तो है आपका फिनेंशियल लॉसेस, बिकॉज जब भी साइबर क्राइम्स ऐसे कुछ होगा, कुछ तो बैंक सर्वर डाउन होगा या कुछ किसी का मनी कट जाएगा, सो ये है। सो मोस्ट ऑफ द साइबर क्राइम्स आर फिनेंशियल इन नेचर। इसका मतलब है जो भी साइबर अटैक्स हो रहा है वो फिनेंशियल थिंग्स पे ऊपर हो रहा है, लाइक UPI QR फ्रॉड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये है। सो इसके वजह से 2019 टू ये कुछ अच्छा डाटा है, you can use this data to quote in your mains answer. Since 2019 to 24 इंडिया लास्ट 31,500 crore, इतना अमाउंट का लॉस हो गया इंडिया को ड्यू टू साइबर क्राइम्स, राइट? ये एक डाटा पॉइंट है। एंड अनदर थिंग है थ्रेट टू क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। सो ये क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? इसका मतलब सिंपली ये है, क्रिटिकल मीन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स समथिंग रिलेटेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर। हियर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है लाइक आपका टेलीकॉम हो गया, राइट? एक तो आपका टेलीकॉम, एक तो आपका बैंकिंग, एक तो आपका पावर। दिस काइंड रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइक पावर के लिए सॉफ्ट ग्रिड्स आर रिलेटेड सॉफ्टवेयर, दिस थिंग्स। बैंकिंग के लिए बैंकिंग का सॉफ्टवेयर होगा, टेलीकॉम के लिए कि भी इसका सर्वर्स होगा, रिलेटेड थिंग्स होगा। जब भी दिस थिंग्स के ऊपर कुछ इफेक्ट होगा ना, तो बहुत भारी इम्पैक्ट होगा ऑन इकोनॉमी, ऑन पीपल्स लाइफ, ऑन गवर्नमेंट सर्विसेज। सो इसलिए हम इसको क्रिटिकल बोलता है, राइट? टेलीकॉम, बैंकिंग, पावर, देयर एग्जाम्पल्स ऑफ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। सो इसके ऊपर भी थ्रेट आएगा, बिकॉज सम टाइम बैक न्यूज़ आ गया कि इंडियन न्यूक्लियर प्लांट के ऊपर साइबर अटैक हुआ, ऐसे हुआ। सो इट इज़ रिलेटेड टू क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट? इसके ऊपर भी थ्रेट आएगा। अनदर है सोशल एंड साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट। द साइबर क्राइम्स में यही है, साइबर स्टाल्किंग और लाइक साइबर स्टाल्किंग है, डीप फेक्स, यूसेज ऑफ डीप फेक्स ऑन पीपल्स फेस। सो दिस विल लीड टू व्हाट? पीपल को जो भी विक्टिम्स होगा उसका बहुत ट्रोमा होगा। सोशल विथड्रॉवल, इसका मतलब है जो भी सोशल मीडिया से पीपल से बात करना वो बंद करेगा। एंड समटाइम्स इट लीड टू सुसाइडल टेंडेंसी आल्सो। सो एक तो आपका हो गया सोशल एंगल, एक तो आपका हो गया फाइनेंशियल एंगल, राइट? फाइनेंशियल एंगल एंड सोशल एंगल। एंड अनदर है एरोजन ऑफ ट्रस्ट, बिकॉज अब अभी रिसेंटली हम देख रहा है एल्डरली पीपल बिकमिंग विक्टिम। वंस ए पर्सन बिकम विक्टिम एंड एवरीवन कम टू नो कि जो भी एल्डरली पीपल है इसका विक्टिम बन रहा है, तो ऑब्वियसली एल्डरली पीपल का फेथ चले जाएगा डिजिटल ट्रांजैक्शंस में एंड डिजिटल थिंग्स में, तो वो डिजिटल ट्रांजैक्शन नहीं करेगा एंड ये डिजिटल थिंग्स को यूज़ करना बंद करेगा, राइट? सो इसलिए एरोजन ऑफ ट्रस्ट है। देन नेक्स्ट अनदर थिंग वी डिस्कस्ड यस्टरडे, वी हैव टू नो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव्स क्या है। ओके, ठीक है, साइबर क्राइम है, इंक्रीज हो रहा है, इसका इम्पैक्ट है, तो गवर्नमेंट क्या कर रहा है, राइट? एज ए सिविल सर्वेंट एस्पिरेंट वी शुड नो व्हाट आर द गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स। सो अभी जब भी आप इनिशिएटिव पढ़ेगा, यू हैव टू डिवाइड इट। एक तो है आपका लीगली व्हाट गवर्नमेंट इज डूइंग, लीगली मतलब लास्ट क्या क्या है टू डील विद दिस सिचुएशन, राइट? अनदर है इंस्टीट्यूशनल मतलब कुछ बॉडीज है क्या टू कंट्रोल दिस फिनोमेना, राइट? लीगल मेजर्स एंड इंस्टीट्यूशनल मेजर्स, राइट? लीगल मेजर्स में वी हैव सो मेनी एक्ट्स। एक तो है आपका IT एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 है। एक तो भारतीय न्याय संहिता रिसेंटली जो आ गया, ये है। एंड अनदर वी हैव स्पेशल एंड लोकल लॉस, मतलब स्टेट रिलेटेड एक्ट्स, दीज आर देयर, यू कैन कोट दिस थिंग्स। वी हैव स्ट्रांग लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, एग्जाम्पल IT एक्ट 2000, भारतीय न्याय संहिता डील्स विद दिस केसेस। बस ये खत्म हो गया। देन अनदर है इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स, राइट? इंस्टीट्यूशन मतलब क्या क्या बॉडीज है इंडिया में जो डील करने के लिए। एक तो है I4C। I4C है मतलब है I है और इसके साथ 4C है, 1 2 3 4, राइट? ऐसे रिमेंबर कर सकते हो, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। इसका नाम ये है, इंडिया का ये बॉडी है, साइबर क्राइम रिलेटेड थिंग्स का कोऑर्डिनेट करता है, मतलब जो भी डिफरेंट बॉडीज है इंडिया में विच डील विद साइबर क्राइम। सो ये एक्ट एज ए कोऑर्डिनेटर सेंटर बिटवीन ऑल दोज बॉडीज। बस I4C एक है। एंड अनदर वन इज सर्टिन का मतलब है कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम इन इंडिया। इट इज़ द अपेक्स बॉडी टू डील विद साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट, समवेयर हैकिंग हुआ, ये फर्स्ट रिस्पॉन्डर है, इसका फर्स्ट रिस्पॉन्ड ये देता है, ठीक है? एंड ये एडवाइजरीज भी इश्यूज़ करता है, मतलब एक काइंड ऑफ गाइडेंस अवेयरनेस के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स रिलीज़ करता है, राइट? अनदर है, हम ऊपर डिस्कस किया अबाउट क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट? सो इसलिए टू प्रोटेक्ट दैट क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर वी हैव ए बॉडी, इट्स नेम इज़ नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर, NCIIPC, राइट? इसका काम ही ये है क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करना, लाइक पावर सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर रिलेटेड डिजिटल एसेट्स को प्रोटेक्ट करना है, राइट? एंड अनदर है, वी हैव CBI एंड NIA। इसमें भी एक स्पेशलाइज्ड डिविजन्स है विच डील विद साइबर फ्रॉड एंड टेररिज्म रिलेटेड क्राइम्स, राइट? सो इसमें CBI NIA में भी कुछ सेपरेट सेक्शंस है विच ओनली डील्स विद दीज थिंग्स, राइट?
इसमें रिसेंटली प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ऑपरेशन चक्रा इज रिलेटेड टू व्हाट, दे कैन आस्क। ऑपरेशन चक्रा इज रिलेटेड टू डार्क वेब फ्रॉड, डार्क वेब फ्रॉड रिलेटेड में ये है ऑपरेशन चक्रा, राइट, हो गया। देन कभी कभी कुछ स्टेट इनिशिएटिव्स इंपॉर्टेंट होता है, फॉर एग्जांपल इधर केरला साइबरडोम, इसके ऊपर सीधा PYQ यूपीएससी PYQ क्वेश्चन है मेंस का, 10 मार्कर का क्वेश्चन सीधा पूछा है, द व्हाट इज़ द साइबरडोम प्रोजेक्ट, हाउ इट कैन कर्टेल साइबर क्राइम्स इन इंडिया, सो ये पूछा है। सो जब भी कुछ थिंग पॉपुलर है तो यू शुड नो एटलीस्ट 4-5 पॉइंट्स अबाउट इट, राइट, ये हो गया। एंड टेक्नोलॉजिकली हमारे पास टूल्स क्या है, सो एज ऑफ नाउ गवर्नमेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग का यूज़ कर रहा है टू चेक द फ्रॉड डिटेक्शन। एग्जाम्पल, आप इसका एग्जाम्पल यूज़ कर सकते हो, RBI म्यूल हंटर AI, तो इसको आप एग्जाम्पल टाइप यूज़ कर सकते हैं। व्हाट इज़ दिस म्यूल हंटर, इसका मतलब ये है म्यूल्स को हंट करेगा। म्यूल्स का मतलब है म्यूल अकाउंट, म्यूल अकाउंट का मतलब है कुछ अकाउंट्स लाइक शेल अकाउंट्स और सम अकाउंट्स विच नॉर्मली क्रिमिनल्स यूज़ टू डू मनी लॉन्ड्रिंग, मतलब वो नॉर्मली कोई रियल पर्सन एग्जिस्ट ही नहीं करता है उसका नाम से, वो अकाउंट का नाम से, बट कुछ फ्रॉडलेंट पीपल कुछ ऐसे अकाउंट्स ओपन करके कुछ अननोन पीपल का नेम पे, सो दे डू यूज़ इट फॉर मनी लॉन्ड्रिंग। सो उसको ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करके ऐसे काइंड ऑफ अकाउंट्स को स्कैन करके उसको डिटेक्ट करता है, राइट। अनदर है साइबर स्वच्छता केंद्र, इसका नाम में है स्वच्छता, मतलब इट विल क्लीन द मालवेयर एंड बॉटनेट्स इन द फोन्स और इट विल गिव द एडवाइजरीज टू द पीपल, हो गया। देन सहयोग पोर्टल, ये इंपॉर्टेंट है आपका प्रीलिम्स के लिए भी, व्हाट इज सहयोग पोर्टल। सो इट इज़ ये है कि गवर्नमेंट एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को इट विल कनेक्ट। इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट वांट टू सेंड सम नोटिस, फॉर एग्जांपल कि ट्विटर को कुछ नोटिस सेंड करना है या फेसबुक को कुछ नोटिस सेंड करना है कि ये पर्टिकुलर पोस्ट और अकाउंट को डिलीट करो, तो ये गवर्नमेंट विल डू दैट यूजिंग दिस सहयोग पोर्टल। इसके उसमें ट्विटर फेसबुक ये भी मेंबर्स है, लाइक गवर्नमेंट भी मेंबर है, इसमें गवर्नमेंट जो नोटिस सेंड करेगा सहयोग पोर्टल के द्वारा, इसके थ्रू वो उसको सेंड करेगा, राइट। अनदर है पब्लिक अवेयरनेस, देर आर सो मेनी कैंपेन्स आर रनिंग। एग्जाम्पल आप ये दे सकते हो, लाइक RBI कहता है कैंपेन या सेबी निर्वेशक शिविर फॉर इन्वेस्टर्स, आप इसको मेंस एग्जाम्पल के लिए यूज़ कर सकते हो, राइट। सो ये हो गया। देन अभी है वे फॉरवर्ड क्या है, सो दीज आर द सो मेनी वे फॉरवर्ड है। आप एग्जाम में ये सब यू कांट राइट ऑल दिस एग्जाम पॉइंट्स इन योर एग्जाम, सो पिक एनी 4 पॉइंट्स, पिक एनी 4 आउट ऑफ इट, इसमें जो भी है उसमें 4 पिक करो जो ईजी है, उसको बस आपका आंसर में राइट करो, राइट। एक तो है इधर एम्पावरिंग CBI को एम्पावर करना है, लाइक फॉर एग्जांपल CBI को टू डील विथ एनी काइंड ऑफ थिंग्स इन स्टेट्स, उनको जनरल कंसेंट चाहिए फ्रॉम स्टेट्स, सो वी कैन एम्पावर CBI बाई व्हाट यू टेल, बाई अमेंडिंग दिस पर्टिकुलर एक्ट, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, ये एक एक्ट है विच प्रोवाइड्स पावर टू CBI, राइट, ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। DPSP एक्ट प्रोवाइड पावर टू CBI, सो इसमें थोड़ा अमेंड करके allow the CBI to investigate cyber crimes without a general consent। इसका when CBI dealing with cyber crimes उसको general consent का ज़रूरत नहीं है, ऐसे कुछ amendment करना है, राइट। एक तो ये है। then legal reforms क्या करना है, we require a unified cyber crime law, हमारे पास laws है बट particularly cyber crime के लिए exact law नहीं है, so we should bring that unified cyber crime law। एंड अनदर है इंटरमीडिएटरी अकाउंटेबिलिटी। इंटरमीडिएटरी का मतलब है लाइक फेसबुक है, ट्विटर है, ये एक इंटरमीडिएटरी है, मतलब यूजिंग दैट पीपल एक्सप्रेस देयर व्यूज एंड एक्सेट्रा, राइट, इट्स ए इंटरमीडिएट, इट इज़ बिटवीन डिफरेंट पीपल एंड बिटवीन पीपल एंड गवर्नमेंट, सो इसका मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन करना है। एंड these प्लेटफॉर्म्स शुड एस्टेब्लिश ए लोकल ऑफिसर्स, मतलब आपका इमेजिन करो आपका स्टेट है तेलंगाना और आपका स्टेट है कुछ अरुणाचल प्रदेश, उसमें भी इसका रिलेटेड ऑफिसर्स होना है, अवेलेबल होना है, या सेंट्रल लेवल में भी अवेलेबल होना है। सो आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप उधर जाकर रेस कर सकते हैं वो प्रॉब्लम्स को, एंड दे कैन सॉल्व इट, राइट। अनदर है कोऑपरेशन होना है बिटवीन स्टेट्स, बिकॉज स्टेट का भी डिफरेंट साइबर क्राइम सेंटर्स होगा, सो उसका बीच में लाइक कोऑपरेशन होना है। एंड वी शुड क्रिएट एन इंटरनेशनल लिएशन यूनिट। सो ये लिएशन क्या होता है, लिएशन का मतलब है कोऑर्डिनेशन, इट्स लाइक कोऑर्डिनेशन सेंटर होना है एक, राइट। एंड टेक्नोलॉजी को ऑपरेट करना है, लाइक वी हैव टू इन्वेस्ट इन ब्लॉकचेन वेरिफिकेशंस, क्वांटम रेजिस्टेंट एन्क्रिप्शन, इसमें वी हैव टू पुट मोर मनी, एंड डाटा को प्रोटेक्ट करना है। हमारे पास एक एक्ट है, राइट, डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट, सो उसको यूज़ करके स्टोरेज एंड KYC डाटा दिस थिंग्स को प्रोटेक्ट करना है। एंड कैपेसिटी बिल्डिंग पॉइंट एंड पब्लिक अवेयरनेस पॉइंट इज कॉमन इन मोस्ट ऑफ दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, वेर वी सिंपली टेल दैट की कैपेसिटी बिल्डिंग, पुलिस को ट्रेन करना है, जुडिशरी को ट्रेन करना है, एंड फोरेंसिक्स लैब्स को एक्सपेंड करना है। पब्लिक अवेयरनेस का मतलब है
एज इंडिया हैज़ डिफरेंट लैंग्वेजेस, उसमें एवरी लैंग्वेज में अवेयरनेस कैंपेन्स रन करना है, राइट। ये इसका रिलेटेड में है, ये मेंस रिलेटेड है। अभी ये देखो, ये प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंपली दे कैन, यूपीएससी कैन सिंपली आस्क यू, साइबर सिक्योरिटी एंड साइबर रेजिलियंस फ्रेमवर्क इज रिलेटेड टू विच ऑर्गेनाइजेशन। एग्जाम्पल में वो देगा आरबीआई, सेबी, CERT, जस्ट नाउ वी डिस्कस्ड अबव दिस थिंग्स वो देगा। सो द आंसर इज सेबी, राइट। इट इज़ इट इज़ ऑन PYQ लाइन्स, बिकॉज प्रीवियसली एक क्वेश्चन पूछा है प्रीलिम्स में, वो पूछा है प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन PCA, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क इज ब्रॉट बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन में दिया सो मनी ऑर्गेनाइजेशंस, बट उस क्वेश्चन का आंसर है RBI। सिमिलरली इधर इसका जो साइबर सिक्योरिटी एंड साइबर रिलीजन फ्रेमवर्क का ऑप्शन है, आंसर है सेबी, राइट। ये रिमेंबर करना आप। सो दिस थिंग्स में क्या होगा, ये साइबर थ्रेट्स को एड्रेस करेगा, पर्टिकुलरली सेबी रेगुलेटेड एंटिटीज जो फेस कर रहा है साइबर थ्रेट्स, उसके ये डील करेगा, राइट। व्हाट आर द सेबी रेगुलेटेड एंटिटीज, लाइक स्टॉक एक्सचेंज हो, म्यूचुअल फंड्स हो, स्टॉक ब्रोकर्स हो, दिस रिलेटेड थिंग्स, राइट। ये आप रिमेंबर करना है, राइट। अनदर थिंग है शेयर्ड इंफ्रा, मतलब शेयर्ड इंफ्रा मतलब RBI से भी दीज थिंग्स यूज सेम काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ड्यू टू देयर ओवरलैपिंग वर्क्स। सो इफ़ वो शेयर्ड इंफ्रा को कोई और ऑडिट नहीं कर रहा है, मतलब RBI एंड अदर थिंग्स आर नॉट ऑडिटिंग, साइबर ऑडिट नहीं कर रहा है, तो देन आल्सो दिस फ्रेमवर्क विल अप्लाई टू देम आल्सो, बिकॉज दे आर नॉट प्रोवाइडेड एनी प्रोटेक्शन थ्रू अदर बॉडीज, राइट। ये हो गया आपका साइबर क्राइम रिलेटेड, थोड़ा लेंथी है, बट आई वॉन्ट यू टू नो द ऑल द की वर्ड्स विद इन इट, सो दैट यू डोंट फील लाइक मिस्ड आउट, राइट। वन मोर थिंग, इसमें और एक दो थिंग्स रह गया, लेट अस सी दोज थिंग्स आल्सो विच इज़ इंपॉर्टेंट फॉर योर prelims examination point of view. एक मिनट, okay, let us move to next topic. Those topics will come in next topic, right. Let us see enforcement directorate, ये अभी न्यूज़ में क्यों है। रिसेंटली एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट रिपोर्ट किया कि इसका कन्विक्शन रेट है 94% अंडर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। मतलब जितना भी केसेस बुक हुआ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट बोला कि इसमें 94% को कन्विक्शन मिल गया, राइट। इसके वजह से 34,000 करोड़ को रिकवर करके विक्टिम्स को दे दिया, उनका विक्टिम्स का मनी उनको आ गया, इतना मनी, राइट। लेट अस सी व्हाट इज़ मनी लॉन्ड्रिंग। हमको फर्स्ट ये पता होना है, मनी लॉन्ड्रिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर मेंस, बिकॉज मल्टीपल टाइम्स PYQ क्वेश्चंस ऑलरेडी आ चुका है एंड फ्यूचर में भी आएगा। द क्वेश्चंस विल कम ऑन मनी लॉन्ड्रिंग डेफिनेटली। सो सिंपली है मनी लॉन्ड्री का मतलब क्या है, इट विल वॉश योर क्लोथ्स एंड रिमूव ऑल द डर्ट एंड मेक इट सो नीट, राइट। आपका क्लोथ्स को धोता है एंड उसको अच्छा बनाता है, क्लीन बनाता है, राइट। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब मनी रिलेटेड थिंग्स में भी ये सेम, इट इज़ डूइंग सेम। इसका मतलब है इट्स ए प्रोसेस विच जो भी इलीगल ऑरिजिन है, मतलब जो भी इलीगल मनी है उसका जो ऑरिजिन है, वो ऑरिजिन को इट डिस्गाइज करेगा। इसका मतलब है अभी कुछ पर्सन करप्शन करके मनी कमाया, या कुछ पर्सन कुछ क्राइम करके मनी कमाया, जो मनी फ्रॉम वेयर इट केम, जो सोर्स है ना, जो क्राइम रिलेटेड मनी, जो सोर्स को इट विल डिस्गाइज, मतलब इट विल कवर इट अप, राइट। एंड इसके वजह से क्रिमिनल्स विल कंटिन्यू देयर क्राइम्स बिकॉज उनका कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो रहा है ड्यू टू मनी विद द हेल्प ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, राइट। इसमें जब भी आप मनी लॉन्ड्रिंग का क्वेश्चन आएगा, आप यू हैव टू राइट दिस 3 थिंग्स। वन इज़ प्लेसमेंट, देन वन इज़ लेयरिंग। एक स्मॉल डायग्राम ड्रा करो ऐसे, प्लेसमेंट, लॉन्ड्रिंग एंड इंटीग्रेशन, इतना स्मॉल डायग्राम ड्रा करो। सो इट शोज दैट आपको पता है व्हाट इज़ मनी लॉन्ड्रिंग। इसमें सिंपली ये है, प्लेसमेंट का मतलब है दैट आपका जो भी क्राइम रिलेटेड मनी है वो आप एक फिनेंशियल सिस्टम में आके पुट कर रहा है, मतलब कुछ कैश मनी को आप डिपॉजिट कर रहा है अकाउंट में, मतलब कैश मनी को बैंक अकाउंट्स में डिपॉजिट हो रहा है, या पीपल आर बाइंग सम इंपॉर्टेंट गुड्स लाइक गोल्ड, कार्स एक्सेट्रा दिस थिंग्स, सो दे आर कन्वर्टिंग दैट मनी, दे आर पुटिंग दैट मनी इनटू ए फिनेंशियल सिस्टम, राइट। एक तो यू आर प्लेसिंग इट इन द फिनेंशियल सिस्टम। एक तो हो गया लेयरिंग का मतलब लेयर बाय लेयर, मतलब एक ही तो जो भी मनी है उसको स्प्लिट करेगा, स्लाइस करके डिफरेंट अकाउंट्स में स्मॉल अमाउंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करेगा, सो दैट जब उसका ऑनलाइन में चेक करेगा ओके ये मनी कहाँ से आ गया, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू चेक बिकॉज वो हंड्रेड्स ऑफ अकाउंट्स के बीच में से वो पास ऑन होगा, तो इट इज़ डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम वेयर इट केम फ्रॉम। लेयरिंग। इंटीग्रेशन मतलब इंटीग्रेट करना है, मतलब जो भी मनी इधर कट होकर डिफरेंट अकाउंट में चले गया, ये सब अकाउंट्स को एक ही प्लेस में लेके आना है, मतलब वी हैव टू इंटीग्रेट, मतलब ये पूरा मनी को इंटीग्रेट करके वो जो भी क्रिमिनल है उसको देगा, मतलब इंटीग्रेशन प्रोसेस में, राइट। दिस इज द स्टेज ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। let us move to this. And so this about enforcement directorate, this is very important for your prelims because it is a non-constitutional body, it's a direct syllabus topic for us, non-constitutional body.
सो सी दिस, एक तो है इसका ऑरिजिन है 1956 में हुआ, एंड इट कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री, ये भी इंपॉर्टेंट है, इट कम्स अंडर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, इसका मतलब है इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है मतलब मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस के अंदर आएगा, राइट। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, ये एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट मेजरली डील विद ऑफेंसेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एंड फॉरेन एक्सचेंज रिलेटेड लॉस का ऑफेंसेस ये डील करता है, राइट। एग्जाम में ये पूछ सकता है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट डील्स विद विच ऑफ द फॉलोइंग लॉस, राइट। आपको ये 4 लॉस पता होना है। सो वन इज़ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट विच इज़ रिलेटेड टू मनी लॉन्ड्रिंग, अनदर है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज रिलेटेड में कोई भी चैलेंजेस है इट इज़ डेल्ट बाय एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। अनदर है फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018 का है। सो इधर फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट आप ये भी रिमेंबर करना है, इट इज़ ऑल्सो डेल्ट बाय ईडी। एंड वन मोर थिंग है कोफ पोसा, इसका मतलब है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग अल्टरनेटिव्स, राइट। ये भी एक इंपॉर्टेंट है। सो दिस 4 लॉस आर डेल्ट बाय एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। लेट अस मूव। सो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का कुछ चैलेंजेस भी हैं, राइट। क्या चैलेंजेस है? एक तो है इसके ऊपर ऑलवेज एलिगेशन लगता है कि एक तो है इट ओवर आर्चिंग ज्यूरिस्डिक्शन है, मतलब इस जो भी इसका इट्स ए सेंट्रल गवर्नमेंट बॉडी, राइट। सो जब भी ये स्टेट में कुछ केसेस को डील करेगा, उसमें इन्वेस्टिगेट करेगा, सो देयर इज ऑलवेज ए फेडरल फ्रिक्शन। मतलब इवन सुप्रीम कोर्ट भी बोला है कि जो भी सम ऑफ द एक्ट्स ऑफ द एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इज लुकिंग लाइक इट इज वायलेटिंग फेडरल स्ट्रक्चर, राइट। एक तो ये है फेडरल पॉइंट है, राइट। सेकंड पॉइंट है एलिगेशन है उसके ऊपर की पॉलिटिकल टारगेटिंग या बयास है उसके अंदर, इसके इंडिपेंडेंस नहीं है, मतलब वो पॉलिटिकली अपोजिशन को ऐसे टारगेट कर रहा है, ये सेकंड पॉइंट है, राइट। देन थर्ड पॉइंट है रिसोर्स एंड मैन पावर कंस्ट्रेंट, ये एवरी बॉडी का चैलेंज है, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसमें मेजर प्रॉब्लम विल कम, उसके पास मनी कम है एंड इसके पास जो मनी पावर जो स्ट्रेंथ है वो भी कम, नॉर्मली कम होता है इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी से अकॉर्डिंगली, राइट। इसमें आप एक एग्जांपल यूज़ कर सकते हैं, सिंस 2011 जो भी मैन पावर अलॉटेड है फॉर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट वो इंक्रीज़ नहीं किया, बट अब देखें तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो बिल्कुल इंक्रीज़ हो गया, क्योंकि जो फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट है वो 2018 में आ गया, राइट, 2011 के बाद आ गया। ये एक्ट को भी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ही डील कर रहा है, बट इसका जो स्ट्रेंथ है ऑलरेडी जो प्रीवियस स्ट्रेंथ है वही है, उसको इंक्रीज़ नहीं किया बट इसका रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंक्रीज़ किया, राइट। ये एक ऑपरेशनल चैलेंज है। देन स्ट्रक्चरल चैलेंज क्या है, स्ट्रक्चरल लीगल चैलेंजेस क्या है? एक तो इसका बहुत डिस्क्रिशनरी पावर है, राइट। इसका बहुत डिस्क्रिशनरी पावर है इन टर्म्स ऑफ कि वो किसी को भी अरेस्ट कर सकता है, वो असेट्स को अटैच कर सकता है। इसका असेट्स को अटैच करना मतलब है कि जो भी एक पर्सन का असेट्स है उसको बोलेगा कि कुछ डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस थ्रू वो अटैच करेगा, इसका मतलब वो पर्सन उसका उनका असेट्स को यूज़ नहीं कर सकता है अंटिल द केस इज़ प्रूव्ड, राइट। अनदर है रिवर्स्ड बर्डन ऑफ प्रूफ, इसका मतलब है जिसके भी ऊपर केस लगेगा वो पर्सन ने उसका बर्डन को मतलब प्रूव करना है कि वो इनोसेंट है। नॉर्मल और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में ये होता है, जब भी इन नॉर्मल क्राइम्स में ये होता है कि जो भी एलिगेशन पुट कर रहा है कि ये बंदा कुछ क्राइम किया, गवर्नमेंट और द पर्सन हैज़ टू प्रूव दैट कि ये पर्सन क्राइम किया है। बट इट द रिवर बर्डन ऑफ प्रूफ, जो भी एक पर्सन के ऊपर एलिगेशन लगा है वो पर्सन हैज़ टू प्रूव दैट कि वो इनोसेंट है, वो क्राइम नहीं किया, राइट। सो इट इज़ ए ब्रॉड डिस्क्रिशनल पावर्स आर देयर। अनदर है जुडिशियल बैकलॉग्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल हार्डल्स। एक्चुअली PMLA प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के ऊपर बहुत कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंजेस है कि इसका जो प्रोविजंस है वो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहा है, ऐसे कुछ केसेस चल रहा है। बिकॉज ऑफ दिस कोर्ट केसेस द ट्रायल्स विच आर द केसेस अंडर दिस पर्टिकुलर एक्ट दे आर टेकिंग सम लेट, दे आर गेटिंग डिलेड, राइट। ये एक चैलेंज है। अनदर है सो आप चैलेंजेस 2 राइट करो, दैट इज़ एनफ बिकॉज देर आर मल्टीपल चैलेंजेस, इसके अंदर से आप ये 2 चैलेंजेस राइट करो, दे आर गुड एंड देर विल बी एनफ। एंड अनदर है इमर्जिंग टेक्नोलॉजी का चैलेंजेस है, राइट। क्या है? वन इज सर्ज ऑफ डिजिटल एंड क्रिप्टो फ्रॉड। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास नॉर्मली कैपेसिटी थोड़ा कम है टू डील विद दिस डिजिटल एंड क्रिप्टो फ्रॉड बिकॉज दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग्स, यू रिक्वायर एक्सपर्ट्स एंड दीज थिंग्स, सो इट इज़ बिकमिंग ए चैलेंजिंग टास्क फॉर ED टू हैंडल दिस टाइप ऑफ क्राइम्स, राइट। अनदर है इम्प्लीमेंटेशन गैप्स है, लाइक फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स लाइक इट फ्लैग्ड द इश्यूज़ की जो भी एक्ट को इम्प्लीमेंट कर रहा है उसमें कुछ व्हाट यू टेल देयर इज सम गैप्स है, मतलब अनएबल टू इम्प्लीमेंट इट फुल्ली। सो ये फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का फाइंडिंग्स है, राइट। इधर AML का मतलब है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, CFT का मतलब है काउंटरिंग फिनेंसिंग ऑफ टेररिज्म, राइट। ये दोनों है। देन वे अहेड क्या है, हाउ वी कैन इम्प्रूव द सिचुएशंस।
एक तो आप ये कर सकते हो दैट ईडी शुड अडेरेंस टू ड्यू प्रोसेस का मतलब है जो भी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है उसको फॉलो करना है, राइट. सो इट कैन टेल दैट कि वी आर फॉलोइंग द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, सो वी आर नॉट बायस. एक तो ये है. अनदर है एविडेंस बेस्ड इन्वेस्टिगेशंस, मतलब इट शुड यूज टेक्नोलॉजीज to collect the evidences and show to the public, to show to the people like who are putting the allegations that they are acting on the basis of these evidences but not without any evidences or something, right. एक तो ये है. अनदर है इसका ह्यूमन रिसोर्सेज एक्सपेंड करना है, एक्सपर्टीज, मतलब कुछ एक्सपर्ट अदर एक्सपर्ट्स का हेल्प लेना है एंड इसका जो भी एम्प्लॉयज है उसको ट्रेन करना है हाउ टू डील विद दिस केसेस. अनदर है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज़ करना है लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, दिस थिंग्स मोर एंड मोर को यूटिलाइज करना है. एंड अनदर है हार्मोनाइजेशन, इसका मतलब है जो भी डिफरेंट बॉडीज़ हैं उसके साथ कुछ कोऑर्डिनेशन करना है. फॉर एग्जांपल देर आर सम केसेस विच इंसॉल्वेंसी लॉ है, वी हैव इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड एंड PMLA एक्ट, दोनों का ओवरलैपिंग में कुछ क्राइम्स आर देर. सो डू डील विद दैट क्राइम्स लाइक ED एंड IBBI, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, कमिंग टुगेदर सो दैट they can solve these cases very quickly. So ऐसे कुछ कोऑर्डिनेशन होना है बिटवीन डिफरेंट बॉडीज, राइट. इधर अनदर थिंग्स इंपॉर्टेंट है, कुछ सुप्रीम कोर्ट का केसेस है, जल्दी देख लेते हैं. एक तो है ये जो केस है इट इज़ जजमेंट ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट, सो यू बेटर फोकस ऑन सुप्रीम कोर्ट डिसीजंस बिकॉज हाई कोर्ट्स आर मल्टीपल, राइट. सो यू हैव टू फोकस ऑन सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट्स. सो इन पंकज बंसल केस सुप्रीम कोर्ट बोला कि लाइक ED जब भी एक पर्सन को अरेस्ट करेगा रिटर्न में इट हैज़ टू गिव द व्हाट आर द ग्राउंड्स वाई दैट पर्सन इज अरेस्टेड, रिटर्न में एक कॉपी इनको देना है, राइट. ये एक चेंज आ गया इन दिस पंकज बंसल केस. अनदर है मनीष सिसोदिया केस, इसमें यह है कि राइट टू फेयर ट्रायल इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट फॉर ए पर्सन. सो ये बोला कि इफ़ ए पर्सन हैज़ टू गेट दिस राइट टू फ्री ट्रायल देन वो पर्सन को ही शुड बी सी व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स इज अगेंस्ट हिम, राइट. ही कैनॉट बी डिनाइड that inspection of the documents which is there against him. So once he see then only he will understand, right, whether the document is right or wrong or he has any like apprehensions on the document, इसलिए उसको वो right है to check the documents. So ये हो गए like Supreme Court cases. And there is two important terms which you have to know for this is important for your prelims purpose. So we will discuss it very quickly. Pig butchering. Pig butchering is in use related to what? Question can come. इसका मतलब सिंपली ये है, पिग का मतलब इट इज़ सिंबल ऑफ फैटनेस, राइट. इट इज़ नॉर्मली वी सी पिग मतलब फैट जनरली. सो इधर पिग बचरिंग का मतलब है एक पर्सन को लाइक यू मेक दैट क्रिमिनल विल मेक अनदर पर्सन टू ट्रस्ट हिम ए लॉट, लाइक ओवर द ईयर्स उसके साथ फ्रेंडशिप करेगा, कुछ ऐसे कुछ रिलेशनशिप मेंटेन करेगा, सो दैट द विक्टिम विल ट्रस्ट द क्रिमिनल, right. They will trust the criminal. Afterwards what will happen after some time that criminal will tell to the victim that ki like you trust me so much so you invest your money in cryptocurrencies और कुछ other things में invest करो, so आपको benefit होगा. But at the end that criminal will take all of that money due to some fraudulent means. इधर आप देखो it's a blend of romance scams and investment fraud. With investment fraud जो भी कुछ हनी ट्रैपिंग ऐसे थिंग्स करके कुछ फ्रेंडशिप करके वो पर्सन को बहुत बिलीव करवाएगा कि दिस पर्सन इज ट्रस्टवर्दी. उसके ऊपर वंस द ट्रस्ट बिकम फैट, मतलब द ट्रस्ट बिकन थिकन, देन इसको स्लैटर करेगा. स्लैटर मतलब फिनेंशियली, मतलब उनका जो भी पूरा मनी है उसको काट जाएगा, राइट. स्लैटरिंग वी कॉल इट. सो इट इज कॉल्ड एज पिग बचरिंग. एक तो ये हो गया पिग बचरिंग. देन व्हाट इज फैंटम हैकिंग. फैंटम हैकिंग का क्या मतलब है, राइट. फैंटम हैकिंग का मतलब है इट्स ए टेक सपोर्ट स्कैम. टेक सपोर्ट स्कैम क्या होता है सर. टेक सपोर्ट का स्कैम का मतलब है फर्स्ट आपको एक मैसेज आएगा, कुछ कॉल आएगा कि आपका अकाउंट ब्लॉक हो गया, आप तुरंत आपका बैंक अकाउंट मैनेजर से बात करना है, ये इसका नंबर है, कॉल करो. या आपका कुछ कॉल आएगा कि आपके ऊपर कुछ केस है समथिंग है, आप ये नंबर प्रेस करो टू स्पीक विद आवर लाइक पुलिस ऑफिसर और समथिंग वन, बिकॉज देन इट इज़ इनडायरेक्टली आस्किंग कि आप एक टेक्निकल टीम का सपोर्ट ले लो टू रिजॉल्व दैट इशू. वंस दैट पर्सन दैट विक्टिम कॉल टू दिस टेक्निकल सपोर्ट टीम, देन उसको मैनिपुलेट करके then they will take his money like this kind of digital arrest. इसमें क्या होगा डिजिटल अरेस्ट में, दैट वंस ए पर्सन विल गेट ए कॉल कि आपका नाम के ऊपर एक पार्सल आ गया है, उसमें कुछ ड्रग्स ऐसे कुछ है, आप प्रॉब्लम में है, आपके ऊपर केस है, तो आप ये नंबर पे प्रेस करो, सो आवर टीम विल कॉन्टैक्ट विथ यू, आवर सपोर्ट टीम विल कॉन्टैक्ट विथ यू. वंस विक्टिम टच ऑन दैट नंबर then they will connect with to fake police and fake bank people, then they will scam him and take his money. So इसका नाम है phantom hacking, right. ये two things are very important for your prelims, right. Now let us enter into news in short. News in shorts, right. First thing है
These are most of the things are your prelims related important है. We will see only those things which are important from your prelims point of view. First thing है Indian Ocean Naval Symposium. It is very important because it's a PYQ question. It was already asked in PYQ of prelims. Right, ये बहुत important है for prelims because already PYQ repeated हुए. Right. Indian Ocean Naval Symposium आपको ये पता होना है. It was by whom? So it is started by Indian Navy इन 2008 में इंडियन नेवी स्टार्ट किया उसको. इसका फर्स्ट सेशन हुआ न्यू दिल्ली में बिकॉज हम ही स्टार्ट किया इंडियन नेवी, तो न्यू दिल्ली में भी इसका फर्स्ट सेशन हुआ 2008 में. राइट. सो इसमें यह है कि नाम में ही है इंडियन ओशन का रिलेटेड नेवल रिलेटेड समथिंग है. इसका मतलब मैरिटाइम कोऑपरेशन कर इम्प्रूव करना है. मैरिटाइम कोऑपरेशन इम्प्रूव करना है एमंग लिटोरल स्टेट्स. लिटोरल स्टेट मतलब है जो भी इंडियन ओशन में है वो स्टेट्स. राइट, लिटोरल स्टेट्स. सो ये स्टेट्स के बीच में मैरिटाइम कोऑपरेशन इंक्रीज करना है. राइट. इसमें कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है. क्राइटेरिया ये है आइदर दैट पर्टिकुलर कंट्री शुड हैव ए परमानेंट टेरिटरी. लाइक इंडियन ओशन में अभी मॉरिशस है या कुछ मालदीव्स है, वो इंडियन ओशन में परमानेंट टेरिटरी है उसका. राइट. और जो भी इंडियन ओशन से बॉर्डर होना है, एटलीस्ट इंडियन ओशन से बॉर्डर होना है, सो दे शुड हैव सम नेवी काइंड ऑफ और सम ऑर्गेनाइजेशन होना है वो कंट्री के पास. बस ये क्राइटेरिया है. राइट. अनदर थिंग है जो भी द टेन्योर ऑफ द चेयर है बिटवीन दैट हु आर हेडिंग दिस इंडियन ओशन नेवल सिम्पोजियम, उसका ड्यूरेशन है 2 ईयर्स है. रोटेट हो जाएगा, मतलब एक 2 ईयर्स के लिए एक कंट्री के पास होगा, उसके बाद नेक्स्ट 2 ईयर्स के लिए अनदर कंट्री वो रोटेट होगा एक पर्सन से अनदर पर्सन से. ड्यूरेशन 2 ईयर्स है. एंड एज ऑफ नाउ इंडिया इज इट्स हेड. इंडिया का टाइम है चेयरमैनशिप का 2025 to 27. ये इतना रिमेंबर करो फॉर प्रीलिम्स. राइट. देन अनदर थिंग, इंडियाज फर्स्ट ओवरसीज डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट. राइट. इंडिया का फर्स्ट ओवरसीज मतलब फॉरेन. राइट. ओवरसीज का मतलब है फॉरेन. इंडिया का फर्स्ट फॉरेन में इंडिया का डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट एस्टेब्लिश हुआ है. सो कहाँ पर हुआ? ये मोरक्को में हुआ. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन कैन कम डायरेक्टली दैट इंडियाज फर्स्ट ओवरसीज डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इज एस्टेब्लिश इन विच कंट्री. ये है मोरक्को. राइट, मोरक्को. तो किसके किसके बीच में है ये जो प्लांट है? ये टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स. टाटा रिमेंबर करो, टाटा एंड डीआरडीओ के बीच में ये जॉइंट वेंचर है. राइट. ये जॉइंट वेंचर बिटवीन टाटा एंड डीआरडीओ. डीआरडीओ गवर्नमेंट का बॉडी है एंड टाटा इज ए प्राइवेट बॉडी. राइट. ये दोनों हो गया. तो ये क्या डिलीवरी करेगा? मतलब जो प्लांट है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, ये क्या मैन्युफैक्चर करेगा? ये मैन्युफैक्चर करेगा व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म. राइट. सी दिस. अभी आपको क्वेश्चन में आ सकता है WHAP 8/8 इज इन न्यूज़ इज रिलेटेड टू व्हाट. क्वेश्चन इतना भी सीधा आ सकता है. राइट. इट इज़ व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म. व्हील्ड मतलब है उसके व्हील्स होगा, जो भी व्हीकल होगा इसका व्हील्स होगा. राइट. व्हील्ड मीन्स व्हील्ड. आर्मर्ड मीन्स इसका इट हैज़ अ प्रोटेक्शन एंड इट्स ए प्लेटफॉर्म टू लर्न सम अदर थिंग्स. राइट. इसका मतलब है लाइक इट इज़ ए इंडियाज फर्स्ट एम्फीबियस. एम्फीबियस मतलब है इट कैन मूव ऑन लैंड एंड इट कैन मूव ऑन वाटर. इंडियाज फर्स्ट इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल. इन्फेंट्री मतलब सोल्जर्स, जो भी सोल्जर्स है हु वॉक ऑन द फुट, मतलब जो भी फुट पे वॉक करेगा. मतलब सम सोल्जर्स है दे यूज़ द फाइटर जेट्स एंड दीज थिंग्स. राइट. सम सोल्जर्स है दे यूज़ द लाइक टेक्निकल गैजेट्स like cyber related things, and some soldiers है who or in the border who walk on the foot and combat directly hand to hand. So उसको मूव करेगा एक प्लेस से अनदर प्लेस में भी, इसको सेफ्टी प्रोवाइड करके थ्रू दिस व्हीकल दे विल मूव इट. राइट. एक तो हो गया आपका रिलेटेड दिस डिफेंस रिलेटेड थिंग. एंड अनदर है एंड्रोथ. राइट. एंड्रोथ क्या है? सो इट इज़ इन एंटी सबमरीन वारफेयर शिप. राइट. इंडियन नेवी का एंटी सबमरीन वारफेयर. एंटी मतलब अगेंस्ट, सबमरीन मतलब जो भी वाटर के अंदर एक वो होगा. लाइक सबमरीन मीन्स विच इज़ अंडर द वाटर. सबमरीन, मरीन में अंदर जो होगा वो व्हीकल सबमरीन से. सो एंटी सबमरीन वारफेयर शिप मतलब ये एक शिप है. सो इट विल फाइट अगेंस्ट दिस एंड सबमरीन्स. राइट. इसके ऊपर इट विल अटैक. राइट. एंड्रोथ मीन्स एंटी सबमरीन वारफेयर शिप. राइट. एक तो ये है एंड इट इज़ सेकंड. टोटल 8 शिप्स का कॉन्ट्रैक्ट है. सो एंड्रोथ इज़ द सेकंड वन. राइट. एंड्रोथ है सेकंड वन एंटी सबमरीन वारफेयर शिप में. इट इज़ सेकंड वन. राइट. इट इज़ बिल्ड बाय हुम, ये इंपॉर्टेंट है, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स ऑफ कोलकाता. जस्ट ये रिमेंबर करो, क्वेश्चन में पूछ सकता है. टू कन्फ्यूज इट दे कैन टेल लाइक अदर गोवा शिप बिल्डिंग और कुछ अनदर नाम दे सकते हैं. सो रिमेंबर गार्डन रिच शिप बिल्डिंग कोलकाता. राइट. सो ये सेकंड है. 8th में ये नंबर नो नीड टू रिमेंबर दैट मच. जस्ट रिमेंबर एंड्रोथ मीन्स एंटी सबमरीन वारफेयर शिप बिल्ट बाय दिस पीपल. एंड अनदर नेम है अर्नाला. ये भी रिमेंबर करो. अर्नाला. अर्नाला इज ऑल्सो सेम. इधर पूरा 8 होना है ना. अर्नाला इज द फर्स्ट शिप
and Androth is the second ship. Question आ सकता है, Androth and Arnala are recently seen in news. They are related to what? They can ask a question like this also, right? ये Androth का नाम आ गया because it's an island in लक्षद्वीप. लक्षद्वीप में so many islands है, इसमें एक island का नाम है Androth, right? अनदर टू रिमेंबर थिंग इज कि ये एक डिजिटल इंजन वाटर जेट कॉम्बिनेशन बेस्ड इंजन है, बस इतना रिमेंबर करो, क्योंकि समटाइम्स वो पूछेगा ये न्यूक्लियर इंजन है ऐसा कुछ, बट जस्ट रिमेंबर करो डिजिटल इंजन है एंड वाटर जेट है, मतलब डीजल भी है एंड वाटर भी है, राइट? इतना रिमेंबर करो, दिस इज एनफ फॉर योर प्रीलिम्स. लेट अस मूव टू नेक्स्ट. एक्सटेंडेड रेंज अटैक म्यूनिशंस. एक्सटेंडेड रेंज का मतलब है उसका जो भी रेंज है बिफोर उसका एक्सटेंड हो गया, राइट? इसका बिफोर का जो रेंज है वो एक्सटेंड हो गया. एक्सटेंड रेंज का मतलब ये है अटैक म्यूनियंस, राइट? सो क्वेश्चन ये पूछ सकता है, एक्सटेंडेड रेंज अटैक म्यूनियंस इन रिसेंटली इन न्यूज, दे आर डेवलप्ड बाय विच कंट्री, राइट? दे आर डेवलप्ड बाय विच कंट्री? दे आर डेवलप्ड बाय यूएसए. बिफोर एक पीवाईक्यू क्वेश्चन आ गया, थर्मो न्यूक्लियर बॉम्ब THAAD, which is called as THAAD. This particular bomb or this particular THAAD is developed by which country? At the time, the answer is USA. अभी क्वेश्चन आ सकता है, एक्सटेंडेड रेंज अटैक म्यूनिशंस इज डेवलप्ड बाय विच कंट्री? इट इज़ यूएसए. एंड ये क्या है एक्सटेंडेड रेंज अटैक म्यूनिशंस का क्या मतलब है? इसका जस्ट इतना मतलब है, दे आर गाइडेड मिसाइल्स. गाइडेड मिसाइल्स का मतलब है दे आर योर क्रूज मिसाइल्स. क्रूज मिसाइल्स इतना है, जस्ट क्रूज मिसाइल्स डेवलप्ड बाय यूएसए, इसका नाम है ये, राइट? हो गया, इतना इज एनफ फॉर योर प्रीलिम्स. नथिंग इज अदर थिंग्स आर नॉट मच इंपॉर्टेंट इन दिस टॉपिक. सो लेट अस मूव टू नेक्स्ट वन. देन ये है पीस पैक्ट विथ कुकी जो ग्रुप्स, राइट? सो अभी क्वेश्चन आ सकता है, सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन अग्रीमेंट was recently seen in news. It is between whom? Suspension of operation agreement, SOO agreement is recently seen in news. It is between whom? अब मेजरली रिमेंबर करना है, ये मणिपुर रिलेटेड है, राइट? सेंटर एक पार्टी है, मणिपुर एक पार्टी है, एंड जो भी कुकी जो हमारे ग्रुप्स है दे आर इन मणिपुर. सो क्वेश्चन मोस्टली ये पूछ सकता है, सेंटर बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड मणिपुर, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड अरुणाचल प्रदेश एक्सेट्रा. बट अब ये रिमेंबर करना है, ये सस्पेंशन ऑफ अग्रीमेंट रिसेंटली इन न्यूज इज रिलेटेड टू मणिपुर एंड कुकी जो जोमी एंड हमर ट्राइब्स, लाइक दिस इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं, राइट? ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसको रिन्यू किया. एक्चुअली ये 2008 में ये अग्रीमेंट को साइन किया, बट अभी इसको रिन्यू किया, अगेन रिन्यूअल किया, राइट? इन द पास्ट आल्सो देर आर सम अकॉर्ड्स लाइक बोडो अकॉर्ड, कार्बी अकॉर्ड. सिंपली क्वेश्चन पूछ सकता है, बोडो अकॉर्ड एंड कार्बी अकॉर्ड आर रिलेटेड टू विच स्टेट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट? इट इज़ असम. इतना रिमेंबर करो इसके बारे में, असम रिलेटेड में है, राइट? एंड ये NLFT है, इसमें टी इट सेल्फ नेम इज़ त्रिपुरा. सो क्वेश्चन पूछने का चांसेस थोड़ा कम है बिकॉज नाम में त्रिपुरा है, तो आप बोल सकते हैं त्रिपुरा रिलेटेड है, राइट? बट इन बोडो अकॉर्ड कार्बी अकॉर्ड उसमें कोई नाम नहीं है स्टेट का, तो इसलिए बोडो अकॉर्ड एंड कार्बी अकॉर्ड इज रिलेटेड टू असम रीजन, राइट? असम स्टेट. तो अभी एक्सरसाइज इन न्यूज़ है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक पर्टिकुलरली मिलिट्री एक्सरसाइज एंड एनी अदर एक्सरसाइज विच हैज़ पर्टिकुलर नेम्स लाइक ऑपरेशन संकल्प, ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन यमुना. दिस काइंड ऑफ नेम्स जब भी आएगा न्यूज़ में वो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, राइट? सो इसमें आप ये रिमेंबर करना है, व्हाट इज़ द स्टेट एंड व्हाट इज़ द बिटवीन विच कंट्रीज इट टेक्स प्लेस एंड व्हाट इज़ इट्स एम. इतना रिमेंबर करने तो काफ़ी है. सो प्लीज़ पार्डन द वॉइस ऑफ द क्रैकर्स बिकॉज सम पीपल स्टिल सेलिब्रेटिंग देयर दिवाली. हैप्पी दिवाली फॉर देम. सो फर्स्ट वन इज एक्सरसाइज ब्राइट स्टार, राइट? एक्चुअली एक्सरसाइज ब्राइट स्टार है, ये सब में इंडिया इज़ पार्टिसिपेटिंग एक्चुअली, इसलिए ये दे आर इन न्यूज़. एक्सरसाइज ब्राइट स्टार है, एक्चुअली ये US एंड इजिप्ट का बायलैटरल मिशन है, मतलब ये दो कंट्रीज़ का मिशन है, बट लेटर उसको एक्सपेंड किया. सो अभी मल्टीपल नेशंस, मतलब नॉट जस्ट US एंड इजिप्ट, सो मेनी कंट्रीज पार्टिसिपेट करते हैं इसमें. सो इंडिया आल्सो पार्टिसिपेटिंग इन इट, राइट? सो एक्सरसाइज ब्राइट स्टार इज इनिशियली इजिप्ट एंड US exercise, but now multiple nations will participate in it. एंड ये ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है, राइट? ये इंपॉर्टेंट है. ट्राई सर्विस का मतलब क्या है? इसमें आर्मी भी पार्टिसिपेट करेगा, नेवी भी पार्टिसिपेट करेगा एंड एयरफोर्स भी पार्टिसिपेट करेगा. नॉर्मली एक्सरसाइज ऐसे होते हैं, नेवी विल मेक वन एक्सरसाइज, एयरफोर्स अनदर एक्सरसाइज, ऐसे करते हैं. बट ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज में ऑल 3 सर्विसेज टुगेदर पार्टिसिपेट इन इट, राइट? मल्टीलेटरल एक्सरसाइज. देन अनदर है एक्सरसाइज मैत्री. इट इज़ बिटवीन whom? इट इज़ बिटवीन इंडिया एंड थाईलैंड. ये इतना रिमेंबर करो. एक्सरसाइज मैत्री रिसेंटली मेघालय में कंडक्ट हुआ, मैत्री मेघालय से रिमेंबर करो, एंड इट इज़ बिटवीन इंडिया एंड थाईलैंड, राइट? मैत्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड थाईलैंड, राइट? काउंटर टेररिस्ट एक्सरसाइज. मोस्ट ऑफ द एक्सरसाइजेस है वो इधर काउंटर टेररिस्ट होगा, नॉट अदरवाइज दे कैन बी कोऑर्डिनेशन बिटवीन देयर मिलिट्रीज, समथिंग लाइक दैट, राइट? इतना 2-3 डायमेंशन ही होगा उसका.
सो मैत्री एक्सरसाइज किसके बीच में, इंडिया एंड थाईलैंड के बीच में, डन, इतना एनफ है. देन अनदर वन है एक्सरसाइज जापाड. एक्सरसाइज जापाड है एक्चुअली इट्स ए मल्टीलेटरल एक्सरसाइज. इसका मतलब है सो मेनी कंट्रीज विल पार्टिसिपेट करता है, बट इट इज़ मेजरली ऑर्गेनाइज्ड बाय रशिया एंड बेलारूस इसको मेजरली ऑर्गेनाइज करता है एक्सरसाइज जापाड को. इसमें इंडिया भी पार्टिसिपेट कर रहा है, बस ये इतना इंपॉर्टेंट है. मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है ये भी. एंड अनदर थिंग इंपॉर्टेंट है जिरकॉन मिसाइल. यूपीएससी हैज़ एन हैबिट ऑफ आस्किंग कि ये मिसाइल किसका कंट्री है, ये वेपन किसका, कौन सा कंट्री है, ऐसे. सो जिरकॉन मिसाइल इज रशियन मिसाइल, राइट. अनदर है रशिया आल्सो S-400. वी हैव S-400 वेपन सिस्टम आल्सो. S-400 इज रिलेटेड टू whom, which country? It is also Russian. So Zircon missile is also Russian. S-400 is also Russian, right? Done. Then Yuddha Abhyas, between which and which? Yuddha Abhyas is between India and US. It's a military exercise. And Vajra Prahar is also India and military exercise only. It is also Vajra Prahar is between India and America. Yuddha Abhyas is also between India and America. This much is enough, right? अनदर वन है पैसिफिक रीच 2025 एक है इंडिया, इसमें भी इंडिया पार्टिसिपेट कर रहा है. सो कौन सा है, सो पैसिफिक रीच 2025 का एक्सरसाइज है. इट इज़ कंडक्टेड इन सिंगापुर, राइट, ये रिमेंबर करो. इट इज़ कंडक्टेड इन सिंगापुर एंड ये बायनल एक्सरसाइज है. बायनल का मतलब है एवरी 2 years में वन टाइम इसको कंडक्ट करता है, राइट. इसमें 2 phases हैं. बायनियल है 2 years में एक बार कंडक्ट करेगा. इसमें 2 phases. एक तो हार्बर फेज है. हार्बर मतलब हार्बर में सिट करके, ऐसे आप रिमेंबर करो, हार्बर में सिट करके सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट एंड दिस पीपल डायलॉग्स, दे स्पीक विथ ईच अदर एंड दे शेयर देयर बेस्ट प्रैक्टिसेस, दिस थिंग्स. अनदर है सी फेज, मतलब सी में क्या करेगा, दे विल डू सम रेस्क्यू एक्सरसाइज एंड अदर एक्शंस दे विल डू, राइट. ये हार्बर फेज, सी फेज दोनों है स्पेसिफिक रीच में. एंड इसमें अनदर थिंग इंपॉर्टेंट है, that is INS Nistar. INS is what? INS Nistar is a diving support vessel by Indian Navy, right? Diving support vessel of INS Nistar is this, right? Done. अनदर है, ये दोनों देखो, एक तो बायलैटरल एक्सरसाइज है, ऊपर मल्टीलैटरल बिटवीन कंट्रीज है. बट अनदर एक्सरसाइज है जो इंडिया विल डू विद इन इंडियन बाउंड्री, लाइक ओनली इंडिया विल पार्टिसिपेट इन इट, बट it army will do some exercise like itself to check its preparedness. Navy will do it some exercise like that. So इसमें फर्स्ट वन है एक्सरसाइज सियोम प्रहार. ये एक्चुअली इट इज़ डन बाय इंडियन आर्मी इन अरुणाचल प्रदेश. इंडियन आर्मी अरुणाचल प्रदेश में एक्सरसाइज कंडक्ट किया. इसमें यह है कि ड्रोन्स इंटीग्रेशन, मतलब ड्रोन्स को हाउ मच वी आर एबल टू इंटीग्रेट इन आवर ऑपरेशंस, लाइक इन बैटल फील्ड. We are just checking what is the preparedness of drones integration in our battlefield by Indian Army. This is called exercise सियोम प्रहार. ये दूसरे कंट्री को और इंडिया के बीच में नहीं है, ओनली इंडिया इज डूइंग फॉर इटसेल्फ, राइट. अनदर है युद्ध कौशल, एक्सरसाइज युद्ध कौशल, राइट. ये इंडियन आर्मी इटसेल्फ इज कंडक्ट कर रहा है इन हिमालयस रीजन में. इंडिया इसका ऑपरेशन प्रिपेयरनेस चेक कर रहा है, युद्ध कौशल. सो ये दोनों डोमेस्टिक एक्सरसाइज हैं, राइट. Another है, this is our last topic for the day, that is Operation Black Forest. Just question can come, Operation Black Forest is in news, it is related to what? So it is anti-Naxal operation, right? It is one of the largest anti-Naxal or anti-Maoist operation conducted in Chhattisgarh Telangana border. इधर हिल का नेम है कर्रेगुट्टा हिल. जस्ट रिमेंबर दिस हिल नेम, कर्रेगुट्टा हिल बिटवीन छत्तीसगढ़ एंड तेलंगाना बॉर्डर है. इधर माओइस्ट के ऊपर गवर्नमेंट एक ऑपरेशन लॉन्च किया, उसका नाम है ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट. इट टुक प्लेस इन 2025. हो गया. देन ये है मिशन संकल्प. ये भी सेम है, ये भी एंटी नक्सल ऑपरेशन है. इट इज़ ऑल्सो स्टार्टेड इन 2025. रिमेंबर करो मिशन संकल्प. बट अभी आपको एक डाउट आएगा, लाइक बिफोर देर इज समथिंग वी हैव हर्ड इन द न्यूज़, ऑपरेशन संकल्प, राइट. ये तो मिशन संकल्प है, बट वो तो है ऑपरेशन संकल्प. डाउट विल कम इन योर ब्रेन, क्या ये दोनों एक है, मतलब इज दिस टू आर सेम, ऑपरेशन संकल्प एंड मिशन संकल्प. सो ये बोथ आर डिफरेंट है. मिशन संकल्प है ये माओइस्ट का अगेंस्ट है. सो ऐसे रिमेंबर करो, एम मिशन, माओइस्ट मतलब एम मतलब इट इज़ अगेंस्ट माओइस्ट और नक्सल्स, राइट. मिशन संकल्प. ऑपरेशन संकल्प है इट इज़ बाय इंडियन नेवी टू प्रोटेक्ट आवर इंडियन वेजल्स इन पर्शियन गल्फ. जो भी पर्शियन गल्फ है, पर्शियन गल्फ, बिफोर देर यूज टू बी इंक्रीज अटैक्स ऑन आवर इंडियन वेजल्स. सो पर्शियन गल्फ में इंडियन वेजल्स को प्रोटेक्शन करने के लिए इंडियन नेवी एक ऑपरेशन लॉन्च किया, उसका ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन संकल्प. सो आई एम वांटेडली ब्रिंगिंग दिस टॉपिक्स सो दैट यू डोंट गेट कन्फ्यूज. एग्जामिनर वांट टू कन्फ्यूज यू इन एग्जाम, सो दैट्स व्हाई आई एम डूइंग दिस रिसर्च
to bring this point, so you remember it thoroughly and you will get the right answer in your exam, right? एक तो ये हो गया. अनदर है ऑपरेशन ग्रीन हंट. ऑपरेशन ग्रीन हंट भी एंटी नक्सल ऑपरेशन है. ये 2009 में स्टार्ट हुआ है एंड पर्टिकुलरली इन 5 स्टेट्स जो भी एट द टाइम नक्सल इन्फेक्टेड है, पर्टिकुलरली बंगाल, झारखंड एंड छत्तीसगढ़, बिहार एंड उड़ीसा. दीज आर ऑल द स्टेट्स विच आर मोस्टली नक्सल इन्फेक्टेड. सो 5 स्टेट्स में है, 2009 में स्टार्ट हुआ ऑपरेशन ग्रीन हंट. ये भी एंटी नक्सल मूवमेंट है, राइट? सो थ्रू दिस, by this we are successfully completing the security topic. So thank you for listening till this end, and my humble request is, please provide your feedback. Please provide your feedback in the comment section, so that I will understand that how I can improve my teaching style, so that it will help you. And at the same time, if you have any other requirements in terms of inculcating any BYQ questions or teaching in particular way, please tell me in feedback in comment, so that I will check it and I will try to accommodate as many as requests as possible in my teaching. Happy learning. I wish you all the best. Thank you.